Good morning, students. This is Karan sir, and you are watching Facts Being Taught, my YouTube channel. And today we are going to continue this chapter. What is democracy and why democracy? This video is going for the class 9 students, and I hope you all are well, safe with your family. So this chapter's name is What is democracy and why democracy is important. So I request all the students to go on to page number 10 or 11. Yesterday in the previous class we discussed what are the arguments that can be given against the democracy, what are the demerits of the democracy, and I asked you to write down the democracy as well. I found that all the students including Smriti Priya, Ruchika, Meher Fatma, Nilofer, Imdad, Rasif Amin, Muzahid, all the students have made that the comparison between the merits and the demerits of the democracy. They sent it last night. So I would like to thank all the students of class 9, those who are trying hard and those who are trying to put their best foot forward. I forgot to mention our boss Aniruddha Ghosh Majumdar, Sagar Mukherjee. Everybody is trying, but I don't think that the Sagar was able to send it last evening. Maybe, whatever. So today we will discuss the topic arguments for democracy. Like yesterday we discussed what are the demerits of the democracy. Today we will discuss the merits of the democracy. China's famine of 5861 A1 was the worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. During those days, India's economic condition was not much better than China, yet India did not have a famine of that kind of China had. Economists think that this was the result of a different government policies in the two countries. It means क्या मतलब इसका? चाइना में एक बहुत ही जबरदस्त सुखाड़ आया, बहुत ज्यादा अकाल आया। अकाल मतलब जहां पे फसलें उगना बंद हो जाए, फसलें पानी के अभाव में मारी जाए, या किसी प्रकार का अनाज का उत्पादन ना हो सके, लोगों को अकाल पड़ जाए, भूखों मरने की स्थिति बन जाए, इसे हम फेमाइन कहते हैं। और ये आया था 1958 से 1961 के बीच में चाइना में, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। आज जो दुनिया में कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला हुआ है, पूरी दुनिया में लगभग 30-35 लाख लोग ही मरे हुए और पूरा हाई तौबा मचा हुआ, पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही। वहीं पे आप सोचिए सिर्फ एक देश में 3 करोड़ लोग मारे गए उस जमाने में जब देश की पॉपुलेशन भी बहुत कम हुआ करती थी 1960 के दशक में। तो इतना बड़ा मार झेलने के बावजूद चाइना और भारत लगभग एक समान इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी एक समान थी, हम दोनों पैसा के मामले में एक जैसे थे। लेकिन चाइना डेवलप करके कहां से कहां पहुंच गया, और जबकि भारत में किसी प्रकार का कोई फेमाइन, कोई सुखाड़, उतना बड़ा अकाल भी नहीं आया, इतने सारे लोग भी कभी नहीं मारे गए, परंतु हम आज भी चाइना से बहुत मामलों में पीछे हैं। चाहे वो बात करें हम देश की सुरक्षा संबंधित विधि व्यवस्थाओं की, उनकी टेक्नोलॉजी की, उनके हर क्षेत्र में वो हमसे आगे हैं। इवन खेल की दुनिया में भी वो हमसे बहुत आगे हैं। आप ओलंपिक में मेडल्स की टैली देखेंगे, चाइना अमेरिका के बाद या अमेरिका से पहले फर्स्ट या सेकंड नंबर पर हमेशा रहता है। क्रिकेट की बात छोड़ दीजिए, क्रिकेट चाइना नहीं खेलता बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग गेम। तो इन दोनों देशों में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था, ये दोनों देशों की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही अलग अलग तरह थी। ओपन द विंडो। The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. जिस तरह से फूड सिक्योरिटी को लेकर के भारत इतना ज्यादा नियम कानून बनाता रहा जैसा कि चाइना ने नहीं किया। They point out that the large-scale famine has ever taken place in an independent country and democratic country. If China had to multiply elections, an opposition party, and a press free to criticize the government,
then so many people may not have died in the famine. यदि अगर वहां पर भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता और वहां भी मीडिया होती जो सरकार को भर्त्सना कर सकती, तो इतने लोग उस फेमाइन में नहीं मारे गए होते। सरकार अपने मन से लोगों को मरने दे रही थी और लोगों के लिए फूड गारंटी का कोई योजना नहीं बना रही थी। यही अंतर है, हमारे देश में सरकार अनाज मुफ्त में बांट रही है, गेहूं चावल 2-2 रुपए किलो 3-3 रुपए किलो देने के नाम पर देश में आज गरीबों की संख्या उतनी ही बढ़ी है और लोग जिनके पास बाइक है, पक्के के मकान है, छत के घरों में रहते हैं, वो भी 5 किलो गेहूं 2 किलो चावल लेने पहुंच जाते हैं। इससे हमारी सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और उन लोगों पर बोझ पड़ता है, हमारे टैक्स पेयर्स पे बोझ पड़ता है। This example bring out one of the reasons why the democracy is considered the best form of government. यही कारण है जिससे कि हम लोग सरकार को, डेमोक्रेटिक सरकार को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in responding to the needs of the people. A non-democratic government may and can respond to the people's needs. एक non-democratic जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो लोगों की जरूरत के हिसाब से काम कर सकते, परंतु वो करती नहीं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल। वो रूल जो लोग सत्ता चलाते हैं उनकी मंशा पर ये बात निर्भर करती है। If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें अपना रुख अख्तियार करना चाहिए, उसके हिसाब से नीति नियम बनाने चाहिए। तो डेमोक्रेटिक का ये दूसरा जो मेरिट है, वो पहला मेरिट मिल रहा है हमें क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह की सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार सबसे बेहतरीन सरकार बन जाती है क्योंकि ये ज्यादा जवाबदेह सरकार है। जनता के जरूरतों के प्रति इसकी जिम्मेदारी बनती है। आज देश में लोग ऑक्सीजन के लिए एकदम चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं लोग ऑक्सीजन की कमी से। सरकार ने फौरन एक डिसीजन लिया कि देश के 5 से 51 जिलों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और ऑक्सीजन की कमी को भविष्य में निपटा जाएगा। आज भी ऑक्सीजन की सप्लाई इधर उधर वायुसेना, भारतीय वायुसेना के द्वारा की जा रही है। कई देशों से उपकरण मंगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बनाने के ताबड़तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्यों कर रही है? हालांकि चाइना में यही हुआ होता, ऑक्सीजन के लिए एक बार सरकार को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लोग मरते हैं तो मरने दो। इस तरह का रवैया चाइना में है क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। दूसरा क्या है? Thus democracy improves the quality of the decision making. एक लोकतांत्रिक सरकार के जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है और अच्छे नियम बनाए जाते हैं, उचित समझे जाते हैं जनता के हित में। अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र में क्या है कि लोगों में जो मतभेद होते हैं, मतभेदों से निपटने के लिए कई तरह के प्रावधान हमारे संविधान में भी दिए गए हैं और इस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है। इनमें इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। लोगों के रुचि में और उनके राय में अंतर होना स्वाभाविक सी बात है, हर समाज में ऐसा होता है। These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. जिस तरह से हमारे समाज में बहुत तरह की विविधता है, इस तरह के देश में एक मतांतर होना, मतभेद होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। People belong to the different religions, speak different languages, practice different religions and have different castes. अलग अलग जाति, धर्म, बोली, भाषा के लोग हैं। यहाँ पे अंतर होना, मतांतर होना, मतभेद होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो अगला एक जो डेमोक्रेसी का पॉइंट मेरिट निकल के आता है, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। लोगों के आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को बहुत ही आगे बढ़ाता है डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में लोगों की बहुत ही प्राथमिकता होती है, लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है। पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। जो सबसे गरीब हो और अनपढ़ भी हो, उस व्यक्ति की भी जो राजनीतिक वैल्यू है वो एक समान है और बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान भी और धन कुबेर भी, सबकी जो मूल्य है हमारे देश के संविधान की नजर में एक है। Finally, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes.
डेमोक्रेसी क्या है कि हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। यदि किसी व्यक्ति ने भूलवश, क्रोधवश या अनजाने में किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, उसे कुछ महीने, कुछ साल जेल में रखा जाता है और उसे पुनः सुधरने का एक मौका भी दिया जाता है। As we saw above, there is no guarantee that the mistakes cannot be made in the democracy. जैसा कि हमने देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि गलतियां ना हो एक लोकतांत्रिक देश में। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, किसी भी तरह की सरकार से गलती हो सकती है, वेदर इट इज डेमोक्रेटिक, मोनार्की और अ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. इस तरह की गलतियां बहुत लंबे समय तक डेमोक्रेसी में छुपाई नहीं जा सकती। सरकार कुछ गलत नियम बनाएगी, कायदे कानून बनाएगी, मीडिया उसकी धज्जियां उड़ाकर रख देगी। लोग आज सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करने में मिनटों का समय नहीं है। There is space for public discussion and on these mistakes. यहाँ पे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन सकता है, सरकार किस तरह के नीति नियम बना रही है, उनमें क्या गलतियां, क्या खामियां, लोग इस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। हमारे मोहल्लों की चाय की दुकान को भारत का द पार्लियामेंट ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है। लोग चाय की दुकान में बैठते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए 10 लोग अपने अपने राय देने लगते हैं। आप देखिएगा, कभी जाके आप किसी चौक पर किसी चाय की दुकान के बगल में आप खड़े हो जाइएगा और उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, निगाहें दूसरी तरफ, कान उनकी तरफ रखिएगा और आप देखेंगे लोग किस किस तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये सरकार तो कोरोना वायरस का सिर्फ अफवाह उड़ा रही है, कोई बीमारी नहीं चल रहा है, झूठ मूठ का बीमारी फैलाया जा रहा है, ये वैक्सीन लेने से भी कुछ नहीं होगा, मास्क लगाने से भी कुछ नहीं होगा, सबको होगा, कोई नहीं मरता है, ये नहीं। बहुत सारी बातें लोग अपनी अपनी राय बहुत ही खुले मिजाज से रखते हैं, वो भी एक पार्लियामेंट की तरह चर्चा का स्थान बन जाता है। अगला जो हम पढ़ेंगे, लेट्स sum it up, and democracy cannot get us everything and it has not the solution to all problems. डेमोक्रेसी हर तरह की समस्या का समाधान नहीं है, but it is clearly better than other alternatives that we know. आज जो भी हमारे पास सरकार, एक डेमोक्रेसी सरकार के अगेंस्ट में जो विकल्प मौजूद है, जैसे मोनार्की और डिक्टेटरशिप, उनसे बेहतर जरूर है। अब इसमें हम लोग को कुछ टॉपिक बढ़ जाता है। टॉपिक नंबर 1.4 जो कि है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे एंड आई होप दैट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी एबल टू कंक्लूड दिस एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग, that today I'm not going to ask you to make any homework. Today we'll take rest and just do one thing. Those who have not made this comparison, the comparison of the merit and demerit of the democracy, you have to make it and show me the first chapter whether you have completed. Just write, this is Ruchika, I have completed chapter 1, the previous chapter. Just this text you have to give, you have to assure that, and when the school will be reopened, I will check your notes physically. Thank you, have a nice day.